Good morning, students. This is your English class. So, dear students, today we are going to understand the question answer and the back exercise of our this chapter, The Adventures of Robin Hood. Right? So, in the previous class, we studied about this chapter. We know that there are some characters: Sheriff's Man, Robin Hood, Leader, other outlaws, Square Gamewell, three butchers, Robin Hood's father, and Sheriff of Nottingham. So basically, this chapter is divided into some scenes, like which type we see the scenes in TV serials. So same way it is divided into some scenes. So in the first scene, we saw that there is a character that is Robin Hood, that is the hero of this chapter. So there is a sheriff. Sheriff means a person who basically is a main officer of law, and law means of law. I mean, basically he manages the law. So sheriff's men come there and they want to catch the um, Robin Hood, but Robin Hood was not at home. He went somewhere, and then the sheriff's men went to the Robin Hood father house, and Robin Hood father said them he has gone in the forest, but they n- did not go to the forest because it was quite dangerous, and they heard that some skilled archers are there, and they can target them or him. And Robin Hood was in the forest, and some other outlaws were there, and they told to Robin Hood like sheriff wants to catch him. Then Robin Hood decided that he will fulfill the wish of the sheriff, and in the guise of a butcher he went there, and the sheriff met him. Then sheriff and Robin Hood came in the forest to see the beast. At that time Robin Hood caught the sheriff and sneezed the 300 gold coins, and then he left him. And then Robin Hood and other outlaws decided that they will distribute this amount to the poor who are in the that town, right? So this is all about this chapter. So now we have to discuss the question answer and back exercise of this chapter. Let me come on the suitable page. Okay, now let's start to understand the question answer. First, reading part. Choose the right options to complete these sentences. ये जो सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें से आपने राइट ऑप्शन चूज करना है ऊपर वाले सेंटेंस के लिए. The sheriff of Nottingham had ordered to arrest of Robin Hood because जो नोटिंगम के शेरिफ थे उन्होंने ऑर्डर दिया था रॉबिन हुड को पकड़ने का. क्यों? क्या रीजंस थे? थ्री रीजंस आर रिटन हियर. रॉबिन हुड हैड एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन. तो प्रिजन से यानी कि जेल से भाग गया था. इट डिड नॉट लाइक रॉबिन हुड. जो शेरिफ था वो रॉबिन हुड को लाइक नहीं करता था. रॉबिन हुड हैड थ्रेटन टू किल द शेरिफ. रॉबिन हुड ने शेरिफ को धमकी दी थी कि वो उसे मार देगा. सो राइट ऑप्शन इज दैट फर्स्ट ऑप्शन, रॉबिन हुड हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, यानी कि वो जेल से भाग गया था. सेकंड क्वेश्चन, द शेरिफ्स मैन डिड नॉट एंटर द फॉरेस्ट बिकॉज जो शेरिफ के मैन थे वो फॉरेस्ट में उन्होंने एंटर नहीं किया क्योंकि देयर वर मैनी वाइल्ड बीस्ट. वहां पे बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट थे, जंगली जानवर थे. द फॉरेस्ट वॉज टू डेंस. जो फॉरेस्ट था वो बहुत ज्यादा डेंस था, बहुत ही घना था. थर्ड, रॉबिन हुड एंड हिज मैन वर स्किल्ड आर्चर्स एंड वर लाइकली टू टारगेट देम. जो रॉबिन हुड था और उसके जो और व्यक्ति थे, मैन थे, उसके आदमी थे, वो सभी के सभी स्किल्ड आर्चर्स थे, अच्छे धनुषधारी थे. वो उनको मार सकते थे, टारगेट बना सकते थे, इसलिए शेरिफ्स के मैन उसके अंदर नहीं गए. So right answer is option C. Robin Hood and his men were skilled archers and were likely to target them. Next, the outlaws in the forest were happy to meet Robin Hood because he, जो outlaws थे forest के, वो Robin Hood से मिलकर खुश हुए क्योंकि
He had a lot of money. He was an outlaw like them, invited them a feast. वो खुश हुए थे क्योंकि रीजंस तीन दिए गए हैं कि रॉबिन हुड के पास बहुत सारा पैसा था इसलिए खुश हो गए थे, या फिर रॉबिन हुड भी उन्हीं की तरह एक आउटलो था इसलिए खुश हो गए थे, या फिर रॉबिन हुड ने उनको फीस्ट के लिए, दावत के लिए इनवाइट किया था इसलिए खुश हो गए थे. सो आंसर इज दैट बी इज आर राइट ऑप्शन. वॉज एन आउटलो लाइक देम, वो भी उसकी तरह आउटलो था, डाकू था, यानी कि कानून का विरोधी था, तो इसलिए वो खुश हो गए थे. नेक्स्ट, द आउटलॉज चोज रॉबिन हुड एज देयर लीडर बिकॉज, जो आउटलो थे उन्होंने रॉबिन हुड को अपना लीडर चुना क्योंकि ही हैड ग्रांड प्लान्स फॉर फाइटिंग द इनजस्टिस अगेंस्ट द पुअर. तो क्योंकि रॉबिन हुड के पास बहुत अच्छा प्लान था उस अन्याय से लड़ने के खिलाफ जो पुअर, जो गरीब लोगों के साथ हो रहा था. सेकंड ऑप्शन, ही हैड किडनैप द शेरिफ सन, उसने शेरिफ के सन को किडनैप कर लिया था इसलिए, या फिर ही कुड इजिली कैच डियर, वो डियर यानी कि हिरन को अच्छे से, आसानी से पकड़ सकता था इसलिए. सो आर ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ही हैड ग्रैंड प्लान्स फॉर फाइटिंग द इनजस्टिस अगेंस्ट द पुअर, उसके पास बहुत अच्छा प्लान था उस अन्याय के खिलाफ जो गरीब लोगों के साथ हो रहा था. Now some questions are here. Part B. Answer these questions. आपने इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं. Hmm. Answer these questions. Why did Robin buy everything from the butcher? तो रोबिन ने सब कुछ बूचर से, यानी कि बूचर का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बेसिकली मीट को सेल करता है, मीट बेचता है. तो बूचर से उस रोबिन हुड ने सारा वो मीट क्यों ले लिया था? You should try to write the answer of this question, and then I'll send the answer key. Then you should match the answers and you should write those answers in your fair notebook. Question number two, how did Robin summon his gang in the forest? Summon means to call. Summon का मतलब होता है किसी को बुलाना. तो हमारा क्वेश्चन है कि रॉबिन हुड ने वो अपनी गैंग को फॉरेस्ट में कैसे बुलाया था? How? Right? Question number three, how was sheriff escorted inside the forest? Why was this method adopted? तो शेरिफ को उस फॉरेस्ट के अंदर कैसे एस्कॉर्ट किया गया, कैसे उसको फॉरेस्ट के अंदर लाया गया, और ऐसा क्यों किया गया, वो मेथड क्यों अडॉप्ट किया गया? हमें पता है कि उसको ब्लाइंड फोल्ड करके लाया गया था, यानी कि उसकी आंखों पे पट्टी बांध के उसको लाया गया था. तो हमने आंसर देना है कि कैसे लाया गया था और क्यों लाया गया था. जो मेथड, उसको आंखों पे पट्टी बांधने का मेथड था, वो क्यों अडॉप्ट किया गया था? Right. Fourth question, why was Robin going to do with the money? Sorry, what was Robin going to do with the money he found on the sheriffs? तो जो मनी उसने शेरिफ से ली थी, 300 जो कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स थे जो उसने लिए थे, शेरिफ से छीने थे, तो उसका वो क्या करने जा रहा था, यानी क्या करेगा वो उसका? तो रॉबिन हुड ने क्या अनाउंस किया था? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड रॉबिन एंड हिज मैन ड्रेस इन ग्रीन? तो वो ग्रीन में क्यों थे, ग्रीन लीव्स में क्यों थे? रॉबिन हुड और उसके जो व्यक्ति थे उन्होंने ग्रीन पत्ते वो क्यों पहने हुए थे? बेसिकली so that it's a very easy answer, so that they can blend to themselves in the environment of the forest, यानी कि फॉरेस्ट में अपने आप को छुपा सके. राइट. C part, read the sentences and answer the question that follow. इस सेंटेंस को पढ़ना है, उसके हिसाब से जो क्वेश्चन लिखे गए हैं उनके आंसर देने. Robin Hood, bah, he is a cowardly outlaw, a scoundrel, a thief. Let me come upon him, he won but once and he will be done for. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज दिस एंड टू whom? ये जो लाइन थी ये किसने कही थी और किसको कही थी? राइट. सेकेंडली, हमें पता है कि फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, किसने कही थी लाइन? ये कही थी शेरिफ ने रॉबिन हुड को. नेक्स्ट, डज द स्पीकर मीट रॉबिन हुड? क्या वो स्पीकर जिसने ये बात कही थी वो रॉबिन हुड से मिलता है या नहीं मिलता है? वी नो द आंसर. सेंटेंस नंबर सी, इज रॉबिन सॉरी टू मीट द स्पीकर, व्हाई एंड व्हाई नॉट? तो जो भी इस लाइन का स्पीकर है, जो भी इसको बोलता है, क्या रॉबिन हुड उससे मिलके पछतावा करता है, पछताता है?
यानी कि गलत महसूस करता है कि मुझे नहीं मिलना चाहिए था उससे। सो हमने आंसर देना है वाई और वाई नॉट। डी पार्ट, think and answer. Why did Robin sell the meat at a price lower than that offered by other butchers? हमने इसका आंसर लिखना है कि रोबिन हुड क्यों अपने मीट को, जो मीट वो बेचता है, उसको इतने कम प्राइस पे क्यों बेचता है, जो प्राइस और बूचर्स बेच रहे होते हैं उनके कंपैरेटिवली उसको कम प्राइस पे, लोअर प्राइस पे क्यों बेचता है। You should try to give the answer. Second question, how do you think the butcher felt when he received such a handsome amount from Robin Hood? तुम्हें क्या लगता है उस बुचर को, उसने कैसा महसूस, मैं वो कैसा महसूस करता है जब वो बुचर उस रॉबिन हुड से उस मीट के बदले एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है उसको, तो वो क्या महसूस करता है। Write a short paragraph on his reaction. Write it in the first person. आपने इसकी रिगार्डिंग एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है और आपने फर्स्ट पर्सन में लिखना है। फर्स्ट पर्सन का मतलब है कि आपने इमेजिन करना है कि आप ही बुचर हो, आपने आई को यूज करना है। आपने लिखना है आई एम ए बुचर, आई वॉज वेरी हैप्पी। इन दिस सेंस यू हैव टू राइट, राइट। यानी कि आपने फर्स्ट पर्सन में लिखना है, अपने आप को इमेजिन करना है कि आप ही बुचर हो। क्लियर। ई पार्ट, डिस्कस इन द क्लास। आपने इस क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस करना है। सो बेसिकली वी आर नॉट इन द क्लास, सो विद योर फ्रेंड्स और विद योर फैमिली मेंबर्स यू कैन डिस्कस दिस क्वेश्चन। Question is that Robin Hood robbed the rich and gave to the poor. What is your opinion about this course of action? तो रॉबिन हुड क्या करता है, रिच लोगों को लूटता है, उन पे डाके डालता है और उनको गरीब लोगों को दे देता है। और तुम्हारी ओपिनियन क्या है इस रिगार्डिंग, इस काम के रिगार्डिंग जो रॉबिन हुड करता था, गरीब लोगों को देना और अमीर लोगों को लूटना। तुम्हारी इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, क्या विचार है, वो आपने बताना। राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड यूजिंग द वर्ड्स। Using the words we have to understand. Choose the option which is closest in the meaning to the underlined words. तो आपने जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनको, इनका मीनिंग चूज करना है। राइट जैसे कि इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी द किंग हैंड ओवर रॉबिन हुड टू अस। तो रॉबिन हुड, सॉरी, हैंड ओवर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। वी शुड ट्राई टू राइट द आंसर ऑफ दिस, मींस लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। हैंड ओवर का मीनिंग क्या होता है, होल्ड रॉबिन्स हैंड, यानी कि रॉबिन के हाथ को पकड़ के रखना, और गिव रॉबिन टू द पुलिस और अनदर अथॉरिटी, किसी को यानी कि किसी पुलिस को या किसी और अथॉरिटी को रॉबिन हुड को दे देना। तो हैंड ओवर का मीनिंग होता है दे देना, यानी कि सौंपना। बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट, second point, he has broken the law and the sheriff will have none of it. तो उसने ब्रो को तोड़ दिया है, सॉरी उसने लॉ को ब्रेक कर दिया है, लॉ को यानी कानून को तोड़ दिया है। तो यहाँ पे हैव नन ऑफ इट का मीनिंग क्या है, नॉट अलाउ इट, यानी कि शेरिफ इसको अलाउ नहीं करता। हैव नथिंग टू डू विद रॉबिन हुड, उसके पास कुछ नहीं है रॉबिन हुड के साथ करने के लिए। हैव नन ऑफ इट का मीनिंग होता है यहाँ पे नॉट अलाउ इट, शेरिफ इस बात को अलाउ नहीं करता कि कोई कानून तोड़े। तो हैव नन ऑफ इट का मतलब होता है नॉट अलाउ इट। क्लियर। नेक्स्ट, द सन स्ट्रीमिंग इन थ्रू ब्रॉड लीव्स, द जंगल ऑफ, sorry, the gurgle of the young stream, birds singing to each other, herds of deer browsing on verdant grass. Verdant का मीनिंग क्या है यहाँ पे, लश और फ्रूटफुल। यानी verdant का मीनिंग होता है लश, यानी कि बहुत ज्यादा ग्रीन। क्लियर, ग्रीनरी वाला। नेक्स्ट, स्पेलिंग, we use double consonant when we add ing or ed to one syllable verb that ends in consonant plus vowel plus consonant. तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि स्पेलिंग का रूल होता है कि जब भी हम किसी वर्ड के साथ आईएनजी ऐड करते हैं या फिर ईडी ऐड करते हैं उसकी फॉर्म को चेंज करने के लिए, तो हम क्या करते हैं उसके जो लास्ट वर्ड होता है, लास्ट लेटर जो होता है उसको डबल कर देते हैं। पर कंडीशन ये है कि वो एक सिलेबल वर्ड होना चाहिए। एक सिलेबल का एक सिलेबल वर्ड का मतलब है कि ऐसा वर्ड होना चाहिए जिसमें एक साउंड हो, एक ही बार में प्रोनाउंस किया जाता हो। राइट, जैसे रोब,
एक ही साउंड है, पुट एक ही साउंड है, जैसे मैं कहता हूँ ब्यूटीफुल, एक से ज्यादा साउंड है, ब्यूटीफुल, राइट, इसमें दो सिलेबल है, तो रोप, पुट, इनमें एक ही सिलेबल है, तो सिलेबल मतलब एक साउंड हो जिसमें। And secondly, combination should be like that, consonant plus vowel plus consonant. तो जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह का होना चाहिए कि पहला लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए, फिर वाउल होना चाहिए, फिर कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और तब उसके बाद अगर हमें आईएनजी या ईडी लगाना है तो उस वन सिलेबल वर्ड के साथ हम जो लास्ट लेटर होता है उसको डबल कर देते हैं, जैसे रोब, रोबिंग, पुट, पुटिंग। क्लियर? Second rule, when a word has more than one syllable and when the final syllable is stressed, तो जब कभी हमारे वर्ड में जिसमें हमें ईडी या आईएनजी ऐड करना है, उसमें जो दो सिलेबल हो और लास्ट वाले सिलेबल पे स्ट्रेस किया जाए, यानी कि थोड़ा उसको और स्ट्रेस के साथ बोला जाए, तो वो उस सिलेबल को भी उसमें जो लास्ट लेटर होता है उसमें उस वर्ड में भी हम लास्ट का लेटर डबल कर देते हैं जब हम ईडी या आईएनजी ऐड करते हैं, जैसे रेफर, फर पे देखो, अर पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, रेफर, यानी कि उसको हम ज्यादा जोर देके बोल रहे हैं, तो इसलिए जब ईडी या आईएनजी ऐड करेंगे तो उसको डबल कर देंगे, रेफर्ड। क्लियर? उसी तरह बिगिन, बिगिन, तो गिन पे हम ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, तो इसलिए जब उसको हम क्या कहते हैं लिखेंगे, जब उसको हम यानी कि आईएनजी ऐड करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हम बिगनिंग कर देंगे, यानी कि डबल एन लिख देंगे वहां पे, राइट। तो जब हमारा एक सिलेबल हो और उसका कॉम्बिनेशन हो कॉन्सोनेंट प्लस वाउल प्लस कॉन्सोनेंट, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसमें लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं, परंतु जहां पे दो सिलेबल हो और लास्ट वाले सिलेबल पे स्ट्रेस दे रहे हो तो वहां पे भी हम डबल कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सर्कल द स्पेलिंग दैट यू थिंक इज करेक्ट। आपने उस स्पेलिंग को सर्कल करना है जो आपको लगता है ठीक है, राइट। जैसे वेटेड, वेटेड, sound is same, we can pronounce, but there is a one word that is right in spelling and another is wrong. So weighted में WAITED means first वाला जो word है, this is right, right, this word is right, this is wrong, double T नहीं आता। Second, smiling, in smiling में भी double L नहीं आता, single आता है, so the first one is right। थर्ड, रबिंग, रबिंग में डबल बी आता है, सिंगल बी नहीं आता, रबिंग, दिस वर्ड इज राइट। नेक्स्ट इज हेल्पिंग, हेल्पिंग में सिंगल पी आता है, डबल पी नहीं आता, तो हेल्पिंग, दिस वर्ड इज राइट, HELPING। नेक्स्ट, फोल्डेड, फोल्डेड में सिंगल डी आता है, डबल डी नहीं आता, यानी कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, फोल्डेड, FOLDED, फोल्डेड, right। And now add ing and ed to these words, double the consonant where required। आपने इन वर्ड्स के साथ ing ऐड करना है और जहां पे इनको डबल करने की जरूरत है, यानी कि लास्ट वाले लेटर को डबल करने की जरूरत है, तो उसको डबल भी करना है, राइट। लाइक ग्लो, ग्लोइंग, ग्लो, ग्लोइंग, एंड सेम ट्रोट, ट्रोटिंग। यहाँ पे आईएनजी ऐड करना है तो डब्ल्यू हम नहीं ऐड, डबल डब्ल्यू को डबल नहीं करते, ट्रोट में डबल टी डबल हो जाएगा, TROTTING, ट्रोटिंग। नेक्स्ट, शॉप, शॉपिंग, डबल पी, वी नीड टू मेंशन द डबल पी। लाफ, लाफिंग, हम इसमें भी आईएनजी ऐड करेंगे, इसमें जीएच को हम डबल नहीं करते। प्ले, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, राइट। So I'll send the answer key, then you should match the answer, then you can write the answers in your fair notebook, right? I think you have understood each and everything.